محکمہ جنگلات اوکاڑا کی جانب سے جشن آزادی کے موقع پر 3000 پودے لگانے کا عزم۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا محمد اکرام ملک نے پودا لگایا۔ مزید دیکھیے منور علی کی یہ رپورٹ۔ اوکاڑا میں جشن آزادی کے موقع پر محکمہ جنگلات کی جانب سے ماس پلانٹیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر اوکاڑا محمد اکرام ملک نے اوکاڑا جمنیزیم سے ملحقہ جگہ پر پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ ماس پلانٹیشن مہم کے تحت اسکول کے بچوں نے تقریباً 3000 پودے لگائے۔ اس افتتاح کے موقع پر ڈویژنل فارسٹ آفیسر چودھری مشتاق چغتائی، اسسٹنٹ کمشنر مرزا رحیم بیگ سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کا کہنا تھا کہ آزادی کا حقیقی پیغام اپنے ملک کو سرسبز اور شاداب بنانا ہے۔ شجرکاری مہم کے تحت ضلع بھر میں 1,00,000 پودے لگائے جائیں گے۔ پودے لگانا ہماری قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انتظامیہ اور عوام مل کر ضلع کو سرسبز شاداب بنائیں گے۔ ہمارا ہدف صرف پودے لگانا ہی نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ منور علی، ATV نیوز، اوکاڑا۔ سوہنی دھرتی کی آواز۔ دیپالپور میں جشن آزادی کے سلسلے میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں اہم شخصیات، سرکاری افسران اور شہریوں نے شرکت کی۔ دیپالپور میں جشن آزادی کے حوالے سے پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں رکن صوبائی اسمبلی شگفتہ فیصل، اسسٹنٹ کمشنر فیصل شہزاد چیمہ، ASP دیپالپور واحد بخش بلوچ، سٹی پریس کلب کے صدر مظہر عباس چودھری، جنرل سیکریٹری میاں کاشف وٹو سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران قومی پرچم لہرایا گیا، جسے پنجاب پولیس کے چاق و چوبند دستے اور ریسکیو 1122 کے دستے نے باقاعدہ سلامی پیش کی۔ اس موقع پر قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا، جبکہ وطن عزیز کی سلامتی، استحکام، اتحاد و یکجہتی اور ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، اس لیے ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے ہر شہری کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ساہیوال بورڈ کے میٹرک امتحانات میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی اور انہیں انعامات و تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی، خوشحالی اور امن و استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ سوہنی دھرتی کی آواز۔ بھوانا میں ستھرا پنجاب ایجنسی اور المیزان ایسوسی ایٹ کمپنی کی جانب سے جشن آزادی کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے رپورٹر محمد افضل رمانہ۔ جی محمد افضل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح بھوانا میں بھی یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تو آج یوم آزادی کے موقع پر ستھرا پنجاب ایجنسی اور المیزان ایسوسی ایٹ کمپنی کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی کی قیادت تحصیل منیجر انجینئر انیب سہیل نے کی ہے۔ ان کے علاوہ آپریشن منیجر المیزان ایسوسی ایٹ کمپنی رہ آفتاب احمد بٹی، منیٹرنگ افیسر رہ محمد اسحاق کلیار، ستھرا پنجاب کے برکر ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ ڈھول کی تھاپ پر نعرے بازی بھی کی ہے۔ ہمارے ساتھ تحصیل منیجر انیب سہیل موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے کہ اس حوالے سے جی آج ہم اپنا 79 یوم آزادی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں، اور میں اس موقع پر اپنے جو بانی رہنما ہمارے قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال ہیں، فاطمہ جناح ہیں، چودھری رحمت علی خان، میں ان سب کو اور جو بھی ان کے ساتھی تھے ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کی آن تک محنتوں سے پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ اور میں اس موقع پر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اور فلسطینی بہن بھائیوں کو بھی ان کے ساتھ ایک عہد کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ان کی آزادی کے لیے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کو بھی ایک آزاد ریاست انشاءاللہ ہم ایک دن بنائیں گے۔ اور اسی موقع پر میں آج اپنی ستھرا پنجاب جو ہماری بھوانا کی ٹیم ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خاص کر کے جو میرے یہ ہیرو کھڑے ہیں میرے پیچھے، جو سینٹری ورکر ہیں، کیونکہ ان کی محنت سے یہ رات 12 بجے اٹھے ہوئے ہیں اور شہریوں کو اس ایونٹ کے موقع پر ایک اچھا اور صاف ستھرا ماحول دینے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے آ کے فیلڈ میں محنت کی اور ورکنگ کی ہے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جی میرے ساتھ موجود تحصیل منیجر انیب سہیل کی بات آپ نے سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج جشن آزادی جو ہے وہ ہم ملی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ ہم آزاد قوم ہیں، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ تو میں اپنے برکر کو بھی جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جشن آزادی کے موقع پر صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ جی سوہنی دھرتی کی آواز۔
उधर ओकाड़ा में भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक जश्न आज़ादी के हवाले से परचम कशाई तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद देखिए राना गुलाम फरीद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान भर की तरह जिला ओकाड़ा में भी आज जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मरकजी तकरीब का इनकाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर ज़राअत व लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी थे और तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक के अलावा तमाम ज़िलई अफसरान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। परचम कशाई की गई, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। इसके अलावा पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सूबाई वजीर सैयद आशिक हुसैन करमानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है। मुल्क पाकिस्तान को हमारे बुजुर्गों ने लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल किया। हम उनकी कुर्बानियों को कभी भी नहीं भूलेंगे। हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से आज एक आज़ाद रियासत में जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इनको अपना दिन समझते हुए मना रहे हैं और इसके साथ साथ ये दोहरी खुशी का दिन है कि आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 150 जो सालगिरह है उसकी भी सेलिब्रेशन है। आज के दिन ही हमने रखी हुई है और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान भर के अंदर हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं अल्लाह ताला के हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को किसी भी मैली नजर से बचाए, पाकिस्तान में रहने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान की फौज जो हमारे लिए सरहदों पर दिन रात ड्यूटी कर रही है और हमें सेफ रखे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको बचाए, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो वफाक की है चाहे वो सूबे की है, अल्लाह ताला उन्हें और जज्बा दे और हिम्मत दे कि वो इसी तरीके से पंजाब भर में खिदमत करें। 14 अगस्त एक तारीख ही नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी और अज़म की अलामत है। ये दिन हमारे बुजुर्गों की बेशुमार कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। कैमरा टीम के साथ राना गुलाम फरीद, ATV न्यूज़, ओकाड़ा। सोहनी धरती की आवाज। उधर पत्तूकी में भी जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया तहसील पत्तूकी ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद इस हवाले से बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर चौधरी शाहिद जावेद। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मुल्क के दूसरे शहरों की तरह पत्तों में भी जश्न आज़ादी के हवाले से केक काटा जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के दफ्तर में, जहाँ पर जश्न आज़ादी के हवाले से केक काटा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ सदर इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया चौधरी मुकद्दर हुसैन और सरपरस्त आला हाजी शाहद क्यूम टीपू मौजूद हैं। मज़ीद इनसे भी जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी जो है वो ज़िंदा कौमें अपना भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाती हैं। जिस तरह आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तहसील पत्तूकी के दोस्त जो है वो अपना जश्न आज़ादी के दिन को जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। तमाम कौम को जश्न आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त तजदीद अहद का दिन है और तजदीद अहद के दिन को मनाना ज़िंदा कौमों की निशानी होती है। पाकिस्तान इस वक्त जिस मोड़ पे आया हुआ है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सलूट पेश किया जा रहा है। इस मौका पर मैं पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, जिसने हमारे दुश्मन भारत की शोला उगलती ज़ुबान को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। मैं इस मौका पर यही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद। जी आपने इनके तासरात जानेंगे। इनका कहना था कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और जब तक ज़िंदा रहेंगे अपना जश्न आज़ादी इसी तरह मनाते रहेंगे। जी सोहनी धरती की आवाज। मुल्क भर की तरह भुवाना में भी यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस भुवाना में परचम कशाई हुई, केक काटा गया और रैली निकाली गई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर भुवाना DSP MPA चौधरी साकिब खान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अफजल रुमाना। जी अफजल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज भुवाना में भी यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तो इसी मुनासबत से म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस भुवाना में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू 1122 ने इस्लामी पेश की है। तकरीब में खसूसी शिरकत MPA PP 97 चौधरी साकिब खान चद्दा, असिस्टेंट कमिश्नर भुवाना DSP भुवाना मोहम्मद सलीम सिंधु, इनके अलावा महकमा एजुकेशन, महकमा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रीड फोर्स, सुथरा पंजाब, अंजुमन ताजरान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भुवाना मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम बताइए किस वाले से। जी अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो, और दूसरा इस मौके पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मुल्क हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों से हमें मिला है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम सब इस एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, और इस मुल्क की तमीर व तरक्की अब हमारी ज़िम्मेदारी है, और हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इस मुल्क की तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना की आपने बात सुनी, हमारे साथ MPA PP सतानवे साकिब खान चद्दड़ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते, बताइए किस वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो, और सेकंड ये कि जैसे मैडम फरमा रही हैं, ये मुल्क हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे ख़ानदानों ने कुर्बानियाँ दे के ये हासिल किया हुआ है, और इसी तरह सबसे बड़ा अहम रोल जो हमारा पाक फ़ौज का है, जो हमेशा की तरह रोल अदा करता है। इसके साथ साथ हमें भी एक एज़ अ पाकिस्तानी इस पाकिस्तान की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह ताला हम करते रहेंगे। मेरे साथ मौजूद MPA PP सतानवे चौधरी साकिब खान चद्दड़ की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि ये मुल्क जो है हमें बुजुर्गों की अजीब कुर्बानियों से मिला है, तो हमें पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होना चाहिए। हम एक आज़ाद कौम है, हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। जी सोहनी धरती की आवाज। पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाना ने यौम आज़ादी का दिन इंतहाई जोश व जज्बे से मनाया, जहां बच्चों समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पेरिस से सुल्तान महमूद की रिपोर्ट। पाकिस्तान के 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर पेरिस में सिफारत खाना पाकिस्तान में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने की धुन पर कौमी परचम लहराने से हुआ। सफ़ीर पाकिस्तान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने परचम कुशाई की, जबकि पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मुअज़्ज़ज़ीन, ख़वातीन, बच्चों और दीगर अफराद की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। अपने खिताब में सफ़ीर पाकिस्तान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि 14 अगस्त एक बाबरकत दिन है, जो हमें आज़ादी की जद्दोजहद, कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह और तहरीक आज़ादी के दीगर रहनुमाओं की कुर्बानियों को याद करने का मौका फराहम करता है। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान 2026 को कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह का साल के तौर पर मना रही है, क्योंकि रवां बरस बानी पाकिस्तान की 150वीं सालगिरह है। उन्होंने कहा कि कायद आज़म का अजीम फ़िक्री विजन आज भी कौम के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के सुनहरी उसूलों पर अमल ही पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर आगे ले जा सकता है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने आज़ादी के मौके पर कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम को भी याद किया और उनके हक़ खुददारियत के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का इआदा किया। सफ़ीर पाकिस्तान ने पाकिस्तान और फ़्रांस के दरमियान ताल्लुक़ात के फ़रोग़ में फ़्रांस में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहते हुए कहा कि सिफारत खाना पाकिस्तानी शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करने के लिए पुरज़्म है। तकरीब के इख्तिताम पर सफ़ीर पाकिस्तान ने सिफारत खाने में कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह की ज़िंदगी, जद्दोजहद और कारनामों पर मबनी तारीख़ी तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में बानी पाकिस्तान की ज़िंदगी से मुताल्लिक नायाब आर्काइवी रिकॉर्ड्स और तारीख़ी तस्वीर पेश की गईं, जिनमें कायद आज़म की बसीरत अफरोज़ क़यादत और पाकिस्तान के क़याम के लिए उनकी जद्दोजहद को उजागर किया गया। नुमाइश में बच्चों ने खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार किया। सोहनी धरती की आवाज।